Hi friends, I am Dr. Prabhat and today we'll be discussing about AIDS. So let's start. First we'll be writing the AIDS and we'll see the full form, and this is acquired immune deficiency syndrome. एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका क्या मतलब है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं. एक्वायर्ड वी ऑल नो मीनिंग ऑफ एक्वायर्ड. एक्वायर्ड मीन्स जेनेटिक नहीं है, इट्स नॉट जेनेटिक, हैज़ बीन एक्वायर्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, सो एक्वायर्ड. दैन द नेक्स्ट इज it is causing the immune deficiency, so it is leading to deficiency in immunity deficiency. And syndrome, what is syndrome? Syndrome is group of sign and symptom. Mainly I should write symptom, तो group of symptom है ना. syndrome is group of symptom. ठीक है जी. So AIDS is acquired immune deficiency syndrome, and what is the causative agent? Causative agent is HIV, and that is human immune deficiency virus. ठीक है, HIV. ठीक, तो AIDS and HIV. आइए डिटेल में करते हैं हम लोग. सो एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम का मतलब आपने मुझे बताया. एंड फर्स्ट टाइम एड्स वॉज रिपोर्टेड इन यूएसए. फर्स्ट टाइम इन यूएसए 1981. यूएसए में कहाँ? तो डिजीज कंट्रोल सेंटर एटलांटा. इंडिया में फर्स्ट टाइम कहाँ डिस्कवर हुआ? चेन्नई में. और कब हुआ? 1986 में. सो इन इंडिया फर्स्ट टाइम डिस्कवर इन 1986 इन चेन्नई. ठीक है जी. बाकी as we'll go ahead in the chapter we will come to know that this disease is mainly characterized by decrease in number of helper T cells. This disease is mainly characterized by decrease in number of helper T cells, and helper T cells are also known as CD4 cells. Helper T cells are also known as CD4 cells. ठीक है. HIV is also known as slim disease. Why slim disease? Because the infection of HIV will cause decrease in weight and the person will become so thin that the name has been derived, the slim disease. Some other name of HIV, but it's not so important for NEET UG. I can write here that not so important for NEET UG. HIV is also known as HCLV3, human cell leukemia virus, है ना, human cell leukemia virus. It is also known as HTLV3, human T lymphotropic virus, also known as LAV, lymphadenopathy associated virus. What is the meaning of adenopathy? तो पैथी वर्ड कहीं भी आए का मतलब है सम बीमारी. दिस शुड बी PATHY, है ना. पैथी वर्ड मतलब बीमारी. फॉर एग्जाम्पल मायोपैथी मसल की बीमारी, न्यूरोपैथी न्यूरॉन की बीमारी. वैसे लिम्फ एडिनोपैथी मतलब लिम्फ नोड की बीमारी. ठीक है. एंड HIV हैज़ 2 स्ट्रेन, HIV1 एंड HIV2. आपको ये याद रखना है कि HIV1 नाम से पता चला 1 मीन्स फर्स्ट, हालांकि सब जगह एप्लीकेबल नहीं है. 1 इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वायरस इन द वर्ल्ड. सो इंडिया में की बात करें या हम थ्रू आउट वर्ल्ड की बात करें, 1 ही मिलेगा. जो 2 है वो वेस्टर्न अफ्रीका वगैरह में आपका मिलता है. ठीक है जी. ये आगे चलते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV. इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ HIV, 3-4 थिंग्स विच इज मस्ट नो. फर्स्ट आई विल से यू शुड नो दैट genetic material of HIV, genetic material is what? What is the genetic material? It is the single stranded RNA and 2 copy of the single stranded RNA. So I will write single stranded RNA, but this is 2 copy. Next आपको ये याद रखना है कि this is a retrovirus. Now what is the meaning of retrovirus? Normally, what is the normal phenomena? Normal phenomena is formation of mRNA from DNA. But here in case of HIV, the story is different. What is the story?
From RNA, first DNA will be formed and from this DNA the mRNA will be formed. तो देखो RNA से DNA का बनना, तो चीज़ों का उल्टा रेट्रो डायरेक्शन में जाना, अदरवाइज क्या होना था DNA से. सो दिस इज रेट्रोवायरस. विल सी दैट वंस इट विल एंटर इनटू द T cell, इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म द DNA एंड देन DNA विल फॉर्म द mRNA. ठीक है जी. ये सो फर्स्ट इज द जेनेटिक मटेरियल पे कमेंट. नाउ इट हैज़ three important enzyme which we have to remember, and we can remember those name as rest in peace, RIP, है ना. once the HIV will enter into the body, it will finally it will cause rest in peace. So R for reverse transcriptase, I for integrase and P for protease. फंक्शन तीनों का हम देखेंगे जैसे हम चैप्टर में आगे जाएंगे. तीनों का फंक्शन क्या है दैट विल सी. ठीक है जी. नेक्स्ट वी आर गोइंग दैट इट हैज़ capsid with P17 and P24 type of protein. What is this 1724? Mainly they are showing the molecular weight. आप याद रखो, mainly they are showing the molecular weight. So it has capsid with this type of protein P17 P24. और बाहर आइए, और बाहर आने पे हम देखेंगे that it has lipid का bilayer. So it is a इन्वेलप्ड वायरस, लिपिड का बाइलेयर है, और इस बाइलेयर से वी कैन सी दैट सम प्रोजेक्शंस आर कमिंग आउट. एंड व्हाट आर दीज प्रोजेक्शन? दे आर ग्लाइकोप्रोटीन, सम आर 41 एंड सम आर 120, है ना. सो दे आर glycoprotein 41 and 120. and what is the use of this glycoprotein? We will see that these glycoprotein, mainly glycoprotein 41, is complementary to CD4 cells where it can combine with CD4 cells. तो यही suppose this is the आपका ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ये CD4 सेल्स का रिसेप्टर है, तो ये जाके यहाँ कंबाइन हो जाता है. ठीक है, CD4 से ऐसे. तो इस तरीके से इन्फेक्शन करने में ही हेल्प करता है ना. चलिए, दवाई जब आप फार्मा पढ़ रहे होंगे MBBS टाइम में आपको पता चलेगा. नाउ इन मार्केट वी हैव फ्यूजन इनहिबिटर, और ये फ्यूजन इनहिबिटर इस फ्यूजन को रोकते हैं. क्या, किस फ्यूजन की बात कर रहे हैं हम? फ्यूजन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 41 एंड CD4 ना, CD4 इनकी बात करें. सेम डायग्राम यहाँ भी है, देखिए दैट ये हमने दिखाया कि दिस इज द CD4 सेल्स, और CD4 सेल्स के रिसेप्टर पे ये जाके आपका कंबाइन होगा और अंदर जाने में हेल्प करेगा. सेम जो हमने पीछे पढ़ा था वही स्ट्रक्चर यहाँ भी है, यू कैन सी. नेक्स्ट, structures and pathogenicity. Structure already we have done. We are coming to pathogenicity. So we are coming to pathogenicity. आसान सी बात है. It will infect the cell with CD4 receptor. CD4 receptor. For example, macrophage. For example, macrophage. For example, T हेल्पर सेल, है ना. इन सेल को ये इन्फेक्ट करता है. सो जिन सेल में ये CD4 रिसेप्टर है उनको इन्फेक्ट करता है. क्या होता है इन्फेक्शन के बाद? सपोज दिस इज द सेल, पूरा सेल नीचे तक है, हमने हाफ पार्ट बनाया है. ये सेल के अंदर जाएगा, इट विल गो इनसाइड द सेल, और इनसाइड क्या भेजेगा? ये अपना RNA भेजेगा, है ना. सो RNA ऑफ HIV. दिस RNA विल बी चेंज इनटू DNA by reverse transcriptase, है ना, by reverse transcriptase. ठीक है, आपने देखा था ना, रिप का एक एंजाइम था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, R for reverse. So the R transcriptase will change the RNA of HIV into DNA. ठीक है जी. Now this DNA will go and will integrate with DNA of host. यहाँ कौन सा एंजाइम काम करेगा बोलो? इंटीग्रेज एंजाइम. याद आया, RIP का एक एंजाइम इंटीग्रेज एंजाइम भी था, तो इंटीग्रेज एंजाइम यहाँ हेल्प करेगा और ये इंटीग्रेट कर जाएगा. तो सपोज दिस इज द होस्ट का DNA, उसमें आपका HIV का DNA जाके इंटीग्रेट हो गया. हाँ, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप विल बी, यहाँ से ऑफ कोर्स mRNA बनेंगे और यहाँ से प्रोटीन बनेगा. अब इस प्रोटीन में सपोज दिस इज द प्रोटीन, तो ग्रीन कलर विल फॉर्म द प्रोटीन ऑफ ग्रीन कलर पार्ट, मतलब हमने हाइपोथेटिकल कलर लिया है. सो जो जेनेटिक मटेरियल HIV का होगा वो प्रोटीन भी HIV का बनाएगा. सो नाउ वी हैव दिस प्रोटीन. यहाँ पे क्या काम करेगा? नाउ प्रोटीएज विल वर्क.
And what is the function of protease? It will break down the protein, and we will have the HIV protein separately, and this HIV protein will come out of the cell, and once it will bulge out of the cell, it will come out of the cell, it will take the membrane of the cell, है ना, तो host cell का membrane इसको मिलेगा. So this is the story, and this is 3 enzymes which we have done, R, I and P, RIP. ठीक है. Let's see. So this was the structure. Already we have said that it's a retrovirus, retroviridae family. Then the core has 2 identical molecule of single stranded RNA and 3 enzymes we have said, which all 3 enzymes: reverse transcriptase, integrase and protease. And then we have core also have inner protein code P24 and outer protein code P17, है ना, ये बात हमने की थी. इन्वेलप हैज़ GP120 एंड GP41 ना, ये सारी बातें हम कर ली. एंड 120 इज कम्प्लीमेंट्री ऑफ CD4. 120 is the complementary of CD4, and this 120 will go and will combine with CD4, and then the fusion will occur. और इसी का हम फ्यूजन इनिबिटर की हमने बात की थी कि नाउ वी हैव मेडिसिन इन द मार्केट टू इनिबिट दिस फ्यूजन. ठीक है. And this is the diagram of NCERT, very important, which we have discussed. देखो, the mRNA of HIV will enter and will form the DNA, and this will integrate with the host DNA, and finally the protein will be there. इस protein पे protease will come, and then the new HIV, new virus will come out. Now, so 3 important steps which you have to remember, that once the HIV RNA will enter into the cell, it will form the DNA will integrate with the host DNA, then the protein will be formed, and then protease will remove the protein of HIV, and that protein HIV protein will come out as a new virus. Now ये बाहर आने के तरीके में we all know that this is CD4 containing cells, CD4 receptor containing cells. So the number of CD4, number of such cell in body will decrease. So T helper cell will also decrease. T helper cell का number will also decrease. Why? Because now these cells are working as a factory, है ना. So T helper cells, also known as CD4 cells. Why? That we have seen in this chapter only. शुरू में हमने देखा था, because of this receptor. और इसका काउंट इवन लेस देन 200 हो जाता है. नॉर्मली इट शुड बी मोर देन 800. यूनिट वी विल सी, यूनिट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट नीट यूजी लेवल, बट आप ये याद रखो कि 200 से नीचे तक आ जाता है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टी हेल्पर सेल? यदि आप फंक्शन याद करेंगे टी हेल्पर सेल का, दिस इज हेल्पफुल इन बोथ. फॉर द सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम भी आपको टी हेल्पर सेल चाहिए, एंड एंटीबॉडी या ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के लिए भी आपको टी हेल्पर सेल चाहिए. नाउ देयर इज डिक्रीज इन टी हेल्पर सेल्स नंबर. तो टी हेल्पर सेल का यदि नंबर कम हुआ का मतलब क्या है? बोथ विल गो फॉर 6. CMIS भी गया और AMIS भी गया. तो बॉडी की इम्यून सिस्टम विल बी वेरी वीक, इम्यूनिटी विल बिकम वीक. इम्यूनिटी बॉडी की क्या हो जाएगी? जब कमज़ोर हो जाएगी. और इससे क्या होगा? इससे आपके इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाएंगे, है ना. HIV का जो पेशेंट है, ही विल स्टार्ट गेटिंग इन्फेक्शन. So this is the main pathogenicity, that CD4 cells के नंबर कम हो जा रहे हैं, and finally the person is getting the infection, and the infection is the cause of the death, in fact, है ना. HIV itself will not kill, the secondary infection will kill. Everything whatever we have done, यही लिखा हुआ है यहाँ पे. वायरल DNA से एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनेगा. DNA will get incorporated into the host cell DNA. Then the macrophage will act as a HIV factory, है ना. Same story whatever we have done. ठीक है. It will attack the HIV which is coming out, will attack the other CD4 cells containing cells, CD4 receptor containing cells like T helper cell, and finally it will cause the decrease in number of T helper cell. ठीक है जी. एंड इससे क्या होगा कि the person will start suffering from the infection like mycobacterium, viruses, fungi, टॉक्सोप्लाज्मा टाइप, है ना. नॉर्मली ये इन्फेक्शन नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इम्यूनिटी इतनी कम हो गई है कि इन्फेक्शन हो रहा है. एंड सच इन्फेक्शंस आर नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन.
अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। वाई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी देख के, ये इन्फेक्शन अपॉर्चुनिटी देख के हो रहा है। नॉर्मली ये नहीं होना चाहिए था, बट अपॉर्चुनिटी ऐसा है, मतलब इम्यून बॉडी की इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गई है, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी देख के इन्फेक्शन हो रहा है। सो दे आर नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक। ट्रांसमिशन, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन HIV? देखो, इन एनी मेथड वेयर देयर इज एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड, वेयर देयर इज एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड, एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड, है ना, तो जहाँ भी एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड हो रहा है, फॉर एग्जांपल यदि हम मदर टू फीटस की बात करें, मदर टू फीटस की यदि हम बात करें, यस, दिस इज नोन एज वर्टिकल ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन, एंड there are 33% of chances of this transmission, that यदि 100 मदर with HIV would be traced कि कितने के फीटस में गया है इन्फेक्शन, we will find that 33 जो मदर के बच्चे हैं वो इन्फेक्ट हुए हैं इससे, ठीक है। देन हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन की यदि हम बात करेंगे, हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन की यदि हम बात करेंगे, हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन, तो वहाँ हम देखेंगे, हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन की यदि हम बात करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि जहाँ भी फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आप बात कर लो, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर लो, है ना, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात कर लो, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात कर लो, आप शेयरिंग ऑफ निडल या फिर सिरिंजेज या ब्लेड्स, इनकी बात कर लो, है ना, तो जहाँ भी फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, इन जगहों से आपको HIV फैलेगा, ठीक। तो ट्रांसमिशन वही सेक्सुअल रूट। देन पैरेंटल, पैर मीन्स एक्सेप्ट एंटल, एंटल मीन्स माउथ, GIT वाला, तो एक्सेप्ट GIT वाले रूट से, जो भी रूट है वहाँ से ये फैलेगा। सो देख लो, पैरेंटलेट लाइक टैटूइंग आप करा रहे हो तो सिरिंज चूँकि सेम यूज होने का डर है, ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हैं हम, है ना, डेंटल इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, तो ये सारी बातें। सेम स्टोरी यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं जो हमने पीछे किया है, द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। इट्स सिंपल सा कि आप देख लो जहाँ भी फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है वहाँ ये होगा। व्हाट इज द मिसकंसेप्शन? देखो, हमने बोला फ्लूइड एक्सचेंज होना चाहिए ट्रांसमिशन के लिए, सो सिंपल हैंड शेकिंग, हगिंग, है ना, या ऐसी वो सारी चीज़ें जिससे कि जैसे ड्राई केस, है ना, इन चीज़ों से नहीं फैलेगा जिसमें फ्लूइड एक्सचेंज नहीं हो रहा। हाइयर रिस्क कौन होंगे? जिसमें भी फ्लूइड एक्सचेंज, जो भी फ्लूइड एक्सचेंज से एक्सपोज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो थैलेसीमिया का पेशेंट है, उसे बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना है, तो उसको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिपीटेशन, तो ऐसे इंसान को, वैसे मान लो जो प्रोस्टिट्यूट हैं, क्योंकि दे आर एक्सपोज टू लाइक हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर, है ना, तो ऐसे लोगों में, है ना, वैसे ड्रग्स एडिक्ट्स, इन लोगों में इसके चांसेस काफ़ी हैं। सो मिसकंसेप्शन, एड्स डू नॉट स्प्रेड बाय मियर टच, फिजिकल कंटैक्ट, हगिंग, किसिंग, शेयरिंग मील्स, शेकिंग हैंड, मॉस्किटो बाइट्स, स्नीजिंग, ये सारी चीज़ें। Why we are doing this at NEET-UG level? Because the AIDS should not be like stigma, है ना, mainly the AIDS is like stigma in our society, तो NCERT is writing all these things so that the stigma can be reduced. अब देखो हाई रिस्क कौन कौन है? हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर, ड्रग एडिक्ट्स, देन रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंड देन ऑफ कोर्स जो इन्फेक्टेड मदर से बच्चा आ रहा है बाहर वो, हाँ। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड? सपोज दिस इज द टाइम लाइन and this is the entry point of HIV in body, है ना, in body, और यहाँ पे साइन एंड सिम्टम आए, so this is known as incubation period. So what is incubation period? Incubation period is the time gap from entry of virus till the appearance of sign and symptom, ठीक है। what is the window period? अब देखो एंट्री ऑफ वायरस के कितने देर के बाद डायग्नोसिस पॉसिबल है, डायग्नोसिस लैब में यहाँ पॉसिबल है। सो दिस फेज, दिस इज नोन एज विंडो पीरियड। सो व्हाट इज द विंडो पीरियड एंड व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड टाइम इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, एंट्री से अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, और विंडो पीरियड कहाँ है? व्हेन टाइम फ्रॉम एंट्री व्हेन इट कैन बी डिटेक्टेड इन द लैब, ठीक है जी। सिम्टम्स, देखो सिम्टम्स में इनिशियली तो एसिम्टोमेटिक होता है पेशेंट, है ना, एसिम्टोमेटिक,
इनिशियल वीक्स में हो सकता है कुछ फ्लू लाइक सिम्टम हो जाए, लाइक फीवर, कफ, अदरवाइज ए सिम्टोमेटिक होगा। कब तक? 5 to 10 ईयर तक हो सकता है। यदि आपको MCQ में पूछा जाए तो आप 10 ईयर करना है ना, बट इट कैन वेरी फ्रॉम 5 to 10 ईयर। देन देयर विल बी एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स, ARC हम करेंगे, इसका फुल फॉर्म आगे है हमने। इसमें क्या होगा? इसमें आपका सिंपल लिम्फ नोड बढ़ने लगेगा है ना, फीवर आएगा, डायरिया होगा, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होने लगेंगी। और देन फुल ब्लोन एड्स होगा ना। व्हाट इज दिस फुल ब्लोन एड्स? इसमें क्या होगा? इसमें आपके तरह तरह के वायरस इन्फेक्ट, लाइक एप्स्टीन बार वायरस, इसके इन्फेक्शन से क्या होता है? इसके इन्फेक्शन से होता है कैपोसी सार्कोमा। सो कैपोसी सार्कोमा का होना है ना, कैपोसी सार्कोमा का होना, तो ऐसे मतलब खतरनाक बीमारियों का होना लास्ट में। इसको हम ग्राफ में दिखा सकते हैं, यदि हम एक ग्राफ बनाएं तो विल मेक अ ग्राफ लाइक दिस, कि ये ग्राफ है और इधर आपका टाइमलाइन है, और आप मान लो इससे आप वायरल लोड दिखा रहे हो, तो वायरल लोड कुछ ऐसा होता है। दिस इज द वायरल लोड। और यदि CD4 काउंट यदि आप शो कर रहे हैं तो एक मिनट बच्चे, लेट मी मेक इट अगेन। वायरल लोड विल बी इनिशियली लेस, फिर बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा, एंड देन फाइनली ये बढ़ जाएगा। हाँ, ऐसे CD4 काउंट की यदि हम बात करें, CD4 पहले ज़्यादा होगा, थोड़ी देर के लिए कम होगा, देन बॉडी विल मेक ओवर द थिंग एंड फाइनली इट विल गो डाउन। सो दिस इज द फेज, दिस इज द पॉइंट जिस पे हम इस 2 की बात कर रहे हैं ना, इस 2 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्या येलो कलर क्या बोला था आपने? येलो कलर आपने बोला था वायरल लोड, कितना वायरस है आपकी बॉडी में। एंड रेड कलर क्या बोला था आपने? रेड कलर आपने बोला था CD4 सेल का काउंट। ठीक है, तो देखो CD4 सेल जैसे ही कम होगा ना, कम होने लगेगा, देन इट विल कॉज द प्रॉब्लम एंड द सिम्टम विल स्टार्ट कमिंग। सेम थिंग देखो, एसिम्प्टोमेटिक फेज 5 to 10 ईयर। हाँ, ड्यूरिंग इनिशियल 2 सप्ताह या फिर 12 सप्ताह तक तो आप लैब में इसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। दैट इज विंडो पीरियड, हमने ऑलरेडी आपसे बोला था। एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स माइल्ड फॉर्म लाइक स्वेलन लिम्फ नोड, फीवर का आना, डायरिया का होना, वेट लॉस होना, खांसी होना, ये सब। फुल ब्लोन एड्स जब CD4 काउंट 200 से भी कम हो जाए। देखो यूनिट दिया हुआ है, बट अगेन यूनिट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज 10⁻6 पर लीटर। तो अब देखो क्या होगा? अब ट्यूबरकुलोसिस, कैंडिडा, मुंह में वाइट पैच का हो जाना, निमोनिया का होना, कैंसर लाइक कैपोसी सार्कोमा का एप्स्टीन बार वायरस से होना है ना, इंसेफेलाइटिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस से होना। ठीक है, ये सारे। एंड मोस्ट ऑफ देम आर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। वाई दे आर नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक, वो भी आपने मुझे बताया था कि नॉर्मल पर्सन को लोग इन्फेक्ट नहीं करते। यहाँ क्यों इन्फेक्ट किए? बिकॉज इम्यूनिटी कम हो गई है। सो दे वर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, है ना, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इन्वेस्टिगेशन, वी हैव 2 मेथड, वन इज स्क्रीनिंग। व्हाट इज स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग इज चीपर मेथड। चीपर मतलब जो आप काफ़ी लोगों पे एक साथ अप्लाई कर सकते हो, है ना। सो व्हाट इज स्क्रीनिंग इन दिस? एलाइजा। व्हाट इज एलाइजा? हम देखेंगे जब बायोटेक पढ़े होंगे। इट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट, ऐसे, है ना। इसमें क्या करते हैं? इसमें देखो, एक मैं रफ आइडिया देता हूँ आपको। इसमें हम पहले से HIV का एंटीजन यहाँ डाल देते हैं। कई तरीके के एलाइजा होते हैं, हम डायरेक्ट एलाइजा की बात करें। सो दिस इज द एंटीजन, मेनली HIV की हम बात करते हैं, HIV। अब आप पेशेंट का सीरम डालते हो, आप डालते हो। मान लो पेशेंट बीमार है, तो पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी होगा, तो वो एंटीबॉडी आके यहाँ लग जाएगा, अब आप कुछ एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन डालते हो विथ एंजाइम लिंक। तो अब मान लो यदि पेशेंट बीमार है तो ये एंटीबॉडी लगा हुआ है, नहीं तो आप वॉश करोगे तो निकल चुका है। तो वॉश करने के बाद आपने क्या किया? आपने कुछ इंजाइम लिंक्ड आपने ये डाल दिया, इम्यूनोग्लोबुलिन इंजाइम लिंक्ड। अब ये इंजाइम कौन कौन से यूज होते हैं? जनरली हम यूज करते हैं अल्कलाइन फॉस्फेट एंड हाइड्रोजन peroxide, but आप alkaline phosphatase याद हो। Now this alkaline phosphate will make the color of this well, जो भी आप बीकर लिए हो, will change the color. Why? Because कुछ यहाँ substrate पड़े हुए हैं। So there are few substrate which are present here, and this substrate will be changed to some product by this enzyme. और ये product कलरफुल है, और ये कलर देख के आप देख लो कि यहाँ बंदा जो है वो बीमार है। क्या हुआ? देखो आसान सा है, सिंपल सी बात।
अपने वेल में क्या रखा है, एंटीजन रखा है। आप बाहर से पेशेंट का सीरम डालो, यदि पेशेंट बीमार है तो वहाँ एंटीबॉडी आके पकड़ जाएगा, नहीं है तो नहीं पकड़ेगा। यदि बीमार है तो एंटीबॉडी पकड़ लिया तो उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन आपने डाला है वो आके वहाँ रुक जाएगा। और उसके ऊपर इंजाइम है, वो इंजाइम क्या करेगा, आपने कुछ ऐसा सब्सट्रेट रखा हुआ है कि वो कलर प्रोड्यूस करता है। तो यदि कलर आ रहा है का मतलब क्या है कि पेशेंट बीमार है। स्क्रीनिंग इज, हमने बोला इट्स चीपर है, बट आप एलाइजा के बेस पे आप 100% श्योर नहीं बोल सकते कि नहीं भाई पेशेंट बीमार ही है। उसके लिए आपको जाना होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट, ऑल्सो नोन एज गोल्ड स्टैंडर्ड, also known as gold standard test. What is the gold standard test? It is western blot. Now what is western blot? हम देखेंगे जब हम कर रहे होंगे आपका DNA टेक्नोलॉजी तब, बट अभी के लिए सिर्फ आप इतना जानो कि वेस्टर्न ब्लॉट में वी डिटेक्ट प्रोटीन, एंड व्हाट प्रोटीन वी आर टॉकिंग ऑफ, एंटीबॉडी, ठीक है। सो एक चीज़ और याद रखो, ये भी हम वहाँ करेंगे। देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लॉटिंग, स्नो ड्रॉप से याद रखते हैं हम, साउदर्न ब्लॉटिंग फॉर DNA, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फॉर RNA एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर प्रोटीन। तो क्या होता है ब्लॉटिंग, 3 टाइप्स के हैं, साउदर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, वो हम देखेंगे। अभी के लिए आप याद रखो कन्फर्मेटिव टेस्ट इज व्हाट, वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। सेम स्टोरी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एलाइजा का डिटेल है थोड़ा कि कई जगह पे एलाइजा यूज होता है, इवन जो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वहाँ भी एलाइजा यूज होता है। बाकी हर जगह बीमारी कहीं भी एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्ट करना, यू कैन गो विथ एलाइजा, ठीक है जी। ये नाउ वी आर कमिंग टू ट्रीटमेंट आप याद रखो, हम वी आर मेनली एक्टिंग ऑन RIP, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को रोकना है आपको, इंटीग्रेज को रोकना है आपको, एंड प्रोटीएज को रोकना है आपको। इन तीनों एंजाइम को आपको काम करने से रोकना है, ठीक है। अब क्या है कि इस लेवल पे हम 3 की बात करें, हालांकि आप देखेंगे जब MBBS कर रहे होंगे देयर आर मेनी मोर, लाइक फ्यूजन इनहिबिटर आपने बोला था खुद ही, है, देयर आर मेनी मोर। हम इन दवाइयों को मिला कर देते हैं, मिक्स मतलब एक ग्रुप इसका, ठीक है। वाई, सो दैट रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। क्यों रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा, ये इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझो कि मिक्सचर करके दवाइयों को देते हैं टू इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ड्रग, ठीक है। सो मिक्स करके अब आप पेशेंट को देते हो, ठीक है जी, मिक्स करके आप पेशेंट को देते हो। नाउ एक चीज़ आप ध्यान रखो, दिस रेजिमेन इज नोन एज हार्ट। व्हाट इज हार्ट? हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। सो हार्ट इज फॉर HIV। सिमिलरली देयर इज समथिंग नोन एज डॉट्स। आप सिर्फ इतना याद रखो, डॉट्स इज फॉर TB। What is the full form of DOTS? Directly observed treatment short therapy, ठीक है। सो डॉट इट फॉर TB। वैसे भी है MDT, है ना, मल्टीपल ड्रग रेजिमेन। व्हाट इज फॉर MDT? मल्टीपल ड्रग रेजिमेन इज फॉर लेप्रोसी। इन सब में चाहे MDT की बात हो, चाहे आप डॉट्स की बात कर रहे हो, चाहे आप हार्ट की बात करो, एवरीवेयर वी मिक्स द ड्रग्स बाई टू इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंसी, ठीक है। सेम स्टोरी, ये नाम आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है, ये आपसे इस लेवल पे नहीं पूछे जाएंगे, है ना। अब सुनो, व्हाट इज़ द गोल ऑफ दिस ट्रीटमेंट, ठीक है। डेथ इज इनहिबिटेबल, हम डेथ को नहीं रोक रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम देखो, हम या तो लाइफ स्पेन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, या हम क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, या हम वायरल लोड को कम करना चाह रहे हैं। सो या तो आप वायरल लोड कम कर रहे हो, ये सब आपका टारगेट है, लाइफ स्पेन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आप डेथ नहीं रोक सकते, इट्स इनविटेबल, ठीक है। चलिए, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज वी नो कि ये कैसे फैलता है, फ्लूइड एक्सचेंज से, और ये सारे कंसियस बिहेवियर से फैलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन चीज़ों को, आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, आप नीडल शेयर ना करें, आप मल्टीपल यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहे हैं तो प्रॉपरली स्क्रीन होना चाहिए ना। तो ऐसे आप कंसियस बिहेवियर करके इसके ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। तो वही NCERT बोलती है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस।
नाउ वी हैव नाको इन इंडिया. व्हाट इज़ नाको? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे देश में लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला रहा है कि व्हाट इज़ एड्स, हाउ यू कैन प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, है ना. फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम कर रहा है. सो ये नाको जो है ये सारी चीज़ें कर रहा है ना. सो डिस्पोजेबल नीडल बांट रहा है लोगों को, है ना. देन कॉन्डम का डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, सेफ सेक्स प्रैक्टिस को प्रमोट कर रहा है ना. ये सारी चीज़ें आपका नाको कर रहा है, सो दैट इसका जो ट्रांसमिशन है वो रुक पाए. ठीक है. सो डियर फ्रेंड, द कैंसर इज द नेक्स्ट टॉपिक, विल डू इट इन नेक्स्ट लेक्चर. एड्स वी हैव डन, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा. प्लीज़ गो टू द यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब इट.